Hello everyone, welcome back to my CS classes. So I'm back with another video and today we will talk about tourism in India. Tourism in India, tourism means पर्यटन, ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं पर्यटन. So what we are going to do, we are going to discuss about the tourism. Before let's start the video, let me explain few things about tourism. Okay, so tourism is one of the fastest growing industries of the world, right? It plays a वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है. देन इंडिया इज़ वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन एशिया, राइट. एवरी वन नोज दिस. एंड एशिया bounded by the Himalayan ranges in the north and surrounded on three sided by water. India offers a wide array of places to see and things to do. To enhancing backwaters, hill stations, and landscapes make India a beautiful country that attract tourists from all over the world. And tourism is the second largest foreign exchange earner in India. The tourism industry employs a large number of people, both skilled and unskilled. Tourism is the largest service industry in India with a contribution of 6.23% of the national GDP and 8.78% of the total employment in India. Hotels, travel agencies, transport, including airlines, benefit a lot from this industry. Tourism promotes national integration and international understanding. It generates foreign exchange, it promotes cultural activities. India has a composite culture, right? There is a harmonious blend of art, religion, and philosophy. Though India has been subjected to a series of invasions, she has retained her originality even after absorbing the best of external influences religious like Christianity, Buddhism, Islam, Hinduism, Jainism, Sikhism, and there's a etc. Have coexisted in India, right? And the diverse geographical locales of India like delight the tourist. The monuments, museums, forts, sanctuaries, places of religious interest, places, etc. Got it? Offer a treat to eyes. Every region is identified with its handicrafts, fair, folk dances, music, its people, right? Some of the places that attract a huge number of tourists are Agra, Jaipur, Jhansi, Hyderabad, Nalanda, Mysore, Delhi, Mahabaleshwar, and etc. And few are Haridwar, Ujjain, Shirdi, Varanasi, Allahabad, Puri, Jammu, Badrinath, etc. So, the Tourism Advisory Board recommends measures for promotion of tourist traffic in India. It revises the tourist trends and suggests appropriate measures. Some of the places' havens and the castles have been converted into heritage hotels. So this was the basic like an idea about the tourism in India. So now we are going to discuss in Hindi. अब बात करते हैं हिंदी में. थोड़ा सा मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. टूरिज़्म को पर्यटन बोलते हैं, ठीक है. भारत में पर्यटन एक देश के आर्थिक विकास में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पर्यटन भारत में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक है. पर्यटन उद्योग में बड़ी संख्या में लोगों को कुशल और अकुशल दोनों में रोजगार मिलता है. यह राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ावा देता है. भारत ने हमेशा अपने धर्मनिरपेक्षता और उसकी संस्कृति की विविधता के साथ दुनिया भर से लोगों को मोहित किया है. ऐतिहासिक स्मारक, समुद्र तट, धार्मिक रुचि के स्थान, पहाड़ी रिजॉर्ट आदि है जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. हर क्षेत्र को अपनी हस्तकला, मेल, लोक नृत्य, संगीत और इसके लोगों के साथ पहचाना जाता है. ये बेसिकली हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है टूरिज़्म का कि टूरिज़्म में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है. अब मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आपको माइंड मैपिंग के थ्रू टूरिज़्म के बारे बेसिक चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है. स्टार्ट करते हैं हम माइंड मैप से. माइंड मैप से पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ
ऐसे प्लेसेस दिखा देता हूँ जो टूरिज़्म से रिलेटेड है, लाइक जो फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप जैसे आपसे कोई पूछे कि टूरिज़्म क्या होता है, टूर क्या होता है एक, सो आप बेसिकली क्या डिफाइन करोगे कि कोई अपने घर से चला गया और शाम को वापस आ गया, वो टूर होता है? जी नहीं। अगर कोई मोर देन 24 आवर्स अपने घर से बाहर रहता है, ठीक है, और अनदर लोकेशन पे जाता है, तो उसको बोलते हैं टूरिज़्म, ठीक है। सो अब आगे बात करते हैं हम कुछ जगह दिखाता हूँ। जैसे आप फर्स्ट जो ये पिक्चर देख पा रहे हो वो है इंडिया गेट, ठीक है, दिल्ली का। पहले मैं इंडिया की कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं फॉरेनर्स की कुछ पिक्चर दिखाऊंगा, फॉरेनर्स की, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, जैसे ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और पारसी धर्म जैसे धर्म भारत में मौजूद हैं, राइट। भारत ने अपने धर्मनिरपेक्षता और उसकी संस्कृति की विविधता के साथ दुनिया भर से लोगों को मोहित किया है। भारत के विविध भौगोलिक लोकल पर्यटकों को पसंद करते स्मारकों, संग्रहालयों, किलों, अभ्यारण्य, धार्मिक रुचि के स्थान, महलों आदि एक की आंखों के लिए एक संधि प्रदान करते हैं। हर क्षेत्र को अपने हस्तशिल्प, मेल, लोक नृत्य, संगीत और उसके लोगों के साथ पहचाना जाता है। सबकी एक अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। कईयों के डांस होते हैं, कईयों के क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं। हर जगह की एक अपनी अलग क्वालिटी होती है। हमारे इंडिया में वैसे जैसे कोई भी कहीं चीज़ की एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, उसको हमारे इंडिया में जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है, आपको पता होगा जीआई टैग का कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं। जैसे आगरा, जयपुर, झांसी, हैदराबाद, नालंदा, मैसूर, दिल्ली, महाबलेश्वर, औरंगाबाद आदि, हरिद्वार, उज्जैन, शिरडी, वाराणसी, इलाहाबाद, पुरी, अजमेर, अमृतसर, वैष्णो देवी आदि सारे टूरिज़्म के क्या हैं, हमारे प्लेसेस हैं, और ये लोगों को अट्रैक्ट भी करती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, ये सारे कुछ धार्मिक प्लेस हैं, कुछ लाइक हमारे रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे बहुत से लोग घूमने आते हैं, ठीक है। और बात करते हैं श्रीनगर, कुल्लू मनाली, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ऊटी आदि प्रसिद्ध और सुंदर पहाड़ी रिजोर्ट हैं, ठीक है। देश में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग का गठन किया गया है, पर्यटन विभाग, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने पिक्चर्स पे। देखो, नेक्स्ट पिक्चर है ताजमहल की। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ये आप देख सकते हो, जल महल जयपुर का। ये जब गंगा नदी पे होती है पूजा, ठीक है। ये हिमालय की है, ठीक है। ये उदयपुर की है, राजस्थान में उदयपुर। ये आप देख सकते हो कितनी ब्यूटी है इंडिया में, ठीक है। ये टूरिज़्म प्लेसेस हैं। और ये है बेसिकली गोवा, जहाँ पे मोस्टली सबके जाने का ड्रीम होता है, गोवा, ठीक है। फिर ये बात करते हैं मैसूर पैलेस की, मैसूर पैलेस। दिस वन इज़ कन्याकुमारी स्पेशल। अब मूव करते हैं हम धीरे धीरे और फॉरेनर्स की कुछ टूरिज़्म इम्पोर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं। मकाओ पिचाऊ पेरू में है। आगे बात करते हैं द ग्रांड्स कैनियन एरिज़ोना में है। रोम इटली, व्हाट अ ब्यूटी, देखो रोम। मोई हवाई, ये सारे बेसिकली वो टूरिज़्म प्लेसेस है जिनसे इकोनॉमी और सब चीज़ों में डेवलपमेंट होता है। लोग आते हैं, फिर वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं ऐसे इकोनॉमिकली। मैं आपको बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, बस अभी आप ये देखो कि इतनी ब्यूटी जगह होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह होती हैं, तभी लोग ऐसे घूमने आते हैं, ठीक है। इस्तांबुल इन टर्की, सैन फ्रांसिस्को इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में बेसिकली सैन फ्रांसिस्को बहुत फेमस है। एंड द लास्ट वन इज़ हांगकॉन्ग, राइट। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट माइंड मैप पे। बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं एक माइंड मैप बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं कुछ चीज़ें इंक्लूड करूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि की पॉइंट्स है वो, तो उन की पॉइंट से आपको बेसिकली समझ में आ जाए कि टूरिज़्म में क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। माइंड मैपिंग के थ्रू चलेंगे पहले हम।
सो मैं पहला माइंड मैप बना रहा हूँ। बेसिकली देखो, बात करते हैं फर्स्ट थिंग, जब भी कोई इंसान टूर के अपने टूर कहीं जाने की सोचता है तो उसको सबसे पहले क्या चीज़ आती है? टूरिज़्म। सो टूरिज़्म इंडस्ट्री, ठीक है। टूरिज़्म इंडस्ट्री में क्या क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सबसे पहली क्या होती है? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हम क्या ले सकते हैं? जैसे अगर कोई भी है, अब सब जैसे अगर हर किसी को ट्रैवल करना है, हर किसी को टूर पे जाना है, सो सबका जाने का, टूर पे जाने का सबका वे अलग अलग होगा। हर किसी का वे उसके फाइनेंशियली उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और वो किस तरीके से जा रहा है, कौन से टूर पे जा रहा है। बहुत टाइप के टूर्स होते हैं, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। सो देखो, otherwise there's lots of options that he or she can go, that is like उसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं सी लाइनर, ठीक है। सी लाइनर बाय लाइक जहाज वगैरह, ठीक है, पानी के द्वारा। एरोप्लेन, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय बाइक, ठीक है। सो इन चीज़ों से हो जा सकता है। टूरिज़्म इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या गया? ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो अब आप देख पा रहे हो कि टूरिज़्म कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टूरिज़्म को आप धीरे धीरे समझ पाओगे कि टूरिज़्म कहाँ कहाँ अपनी अपना अपना रोल निभाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ टूरिज़्म एक्टिविटीज़। अब टूरिज़्म एक्टिविटीज़ में आप किस चीज़ को इन्वॉल्व करोगे? सो मैं बताता हूँ, कोई कहीं भी जाता है तो आप भी कहीं जाते हो तो आप किसके लिए, यू विल ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सीकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको असेंबली चाहिए, मीन्स वहाँ पे गैदरिंग चाहिए लोगों की, ठीक है। असेंबली होनी चाहिए, और असेंबली होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए? वाटर इवेंट्स होने चाहिए, वाटर इवेंट्स। सो अब देखो, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ना टूरिज़्म इंडस्ट्री के 4 पार्ट हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट एक्टिविटी, हाउसिंग इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री, ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कर दिया, टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को, हाउसिंग इंडस्ट्री को और फूड इंडस्ट्री को मैं करता हूँ अभी, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैं जैसे टूरिज़्म एक्टिविटीज़ पे कर रहा था, मैंने ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म कर दिया। अब बात कर रहा हूँ मैं सेकंड की, टूरिज़्म एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? एंटरटेनमेंट आता है, असेंबली होती है, लोगों की गैदरिंग, वाटर इवेंट्स, फिर क्या आता है? कल्चरल इवेंट्स आते हैं, देन स्टडी टूरिज़्म, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ प्ले। कल्चरल एक्टिविटीज़, टूरिज़्म एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट कौन सी आती है? हाउसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। टूरिज़्म इंडस्ट्री में मैंने आपको 4 पार्ट बताए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, टूरिज़्म एक्टिविटीज़, हाउसिंग इंडस्ट्री और फूड सर्विस इंडस्ट्री। सो अब बात करते हैं थर्ड वन की, हाउसिंग इंडस्ट्री की। तो यार देखो, जैसे हम कहीं गए, सो हमने पहले अपना जाने का तरीका देख लिया कि हम कैसे जाएंगे। फिर हमने वहाँ पे ये देख लिया कि हम क्या क्या करेंगे टूरिज़्म एक्टिविटीज़ में। फिर हम देख रहे हैं हाउसिंग इंडस्ट्री, मतलब हम कहाँ रहेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें होटल इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या, मोटेल, फिर क्या, रिजोर्ट्स आ जाएंगे इसमें। फिर क्या, बेंगलोज, जितने भी बंगलाज होते हैं। फिर क्या हो जाएंगे, हॉस्टल, ठीक है। और क्या, कैंप्स, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। सो अब हमने क्या कर लिया, हमारा जाने का तरीका। टूरिज़्म इंडस्ट्री में हमने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पहले कर लिया, सेकंड हमने टूरिज़्म एक्टिविटीज़ कर ली, फिर हमने हाउसिंग कर ली। फिर अब हम बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज़ फूड सर्विस इंडस्ट्री। अब जाएंगे तो कहीं खाएंगे पिएंगे भी ना। तो अब बात करते हैं फूड सर्विस इंडस्ट्री। देखो, फूड सर्विस इंडस्ट्री में हम मोस्टली किस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं? हम कहाँ कहाँ से, जैसे हम, आप इमेजिन करो, आप एज ए टूरिस्ट कहीं जा रहे हो तो क्या, या तो होटल, क्या प्रेफर करोगे? होटल, कैफेटेरिया, देन कैटरिंग का खाना, देन और हो सकता है क्या, और क्या हो सकता है? टेक अवे, पैकिंग वाला हो सकता है, टेक अवे हो सकता है। सो ये बेसिकली क्या थे, फूड सर्विस इंडस्ट्री में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये हमने बात करी। अब देखो, मैं बेसिकली आपको एक और बार बता देता हूँ मैंने क्या डिस्कस करा है अभी। मैंने डिस्कस करा है जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है ना, पूरी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है,
ठीक है, उसके अंदर 4 पार्ट थे। कौन सा? ट्रांसपोर्ट था, फिर कौन सा था? एक्टिविटीज़ थी, टूरिज्म एक्टिविटीज़, फिर कौन सी थी? हाउसिंग थी, और फिर कौन सी थी? फूड सर्विस थी। सो अब एक चीज़ देखो, आपको थोड़ा थोड़ा टूरिज्म समझ में आने लग गया होगा। देखो यार, टूरिज्म मीन्स, टूरिज्म कैसे एक कंट्री की इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे बढ़ाता है, कैसे घटाता है, ठीक है, वो बात देखो। आपको पता है ना, अभी जो चीज़ें हैं, ये जो कितने लोग काम करते होंगे इसमें, कितने, आपको पता है, आप खुद आइडिया लगाओ, खुद सोचो एक मिनट कि इन चारों पार्ट्स में कितने लोग आ जाते होंगे। ट्रांसपोर्ट, एक्टिविटीज़ में, ठीक है, फिर हाउसिंग में, फिर फूड में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। उसके बाद क्या आते हैं? इसके बाद भी कुछ आता है? जी हाँ, उसके बाद भी कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे हम कहीं टूरिस्ट पे गए तो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आती हैं? सोवेनियर शॉप्स। कौन सी शॉप्स? सोवेनियर शॉप्स। जिन जैसे हम बोल सकते हैं सोवेनियर मीन्स लाइक, पहले मैं आपको लिख देता हूँ। सोवेनियर शॉप्स ये होती है कुछ ऐसी शॉप्स जो जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती हो, लाइक यादगार चीज़ें, ठीक है, यादगार चीज़ों की दुकान यादगार चीज़ों की दुकान, ठीक है। सेकंड वन इज़ गिफ्ट शॉप। आप कहीं जाते हो तो गिफ्ट शॉप तो लेके आते हो ना, कहीं जाते हो तो आप तो निशानी लेके आते हो, हम यहाँ गए, एक क्या लेके आते हो? गिफ्ट्स किसी के लिए, कि यहाँ गए हो, हम किसी के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं। देन क्राफ्ट्स, अगर आप कहीं गए हो तो आप वहाँ की क्राफ्ट्स को ज़रूर इन्फ्लुएंस होते हो वहाँ की क्राफ्ट्स को देख के। देन शॉपिंग मॉल्स, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स, फिर जनरल मॉल्स, जितने भी मॉल्स होते हैं। सो ये एक और सेक्टर आ गया, ठीक है। टूरिज्म ने हमने 5 सेक्टर डिस्कस कर लिया अभी तक। फिर अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट माइंड मैप पे बढ़ते हैं। हमने क्या करा है अभी? बेसिकली एक बेसिक आइडिया लिया है कि टूरिज्म है क्या, टूरिज्म में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। टूरिज्म अभी तो हमने बेसिक चीज़ें देखी हैं, ठीक है। हम थ्योरी भी पढ़ेंगे इसकी, बहुत सारे माइंड मैप्स भी पढ़ेंगे। सो टूरिज्म को हम एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रहेंगे आज टूरिज्म का, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली देखो यार, अगर लोग वैसे कहते हैं कि टूरिज़्म, जैसे जो बाहर के लोग होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली और कहीं भी तो जा सकते हैं। जैसे यूएस, फ्रांस के लोग होते हैं, वो बांग्लादेश में, इसमें नेपाल, चाइना में जा सकते हैं। बट वो यहाँ पे क्यों आते हैं ज़्यादा? इंडिया में क्यों आते हैं? वाई इंडिया? या इंडिया को क्यों चूज़ करेंगे? बेसिकली हम भी कहीं जाएं, ठीक है, या हम भी कहीं किसी टूर पे जा रहे हैं, सो हम भी स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ को देखेंगे ना कि यार ये चीज़ यहाँ पे है तो इस वजह से हमें यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। सो उसी के हिसाब से वाई इंडिया, कोई अगर इंडिया को चूज़ करेगा तो क्यों करेगा? अब मैं टूरिज्म इन इंडिया पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी हेल्प करेगा हर जगह पे, ठीक है। सो वाई इंडिया? देखो, सबसे पहली चीज़ लो कॉस्ट, लो कॉस्ट इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ जैसे कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज़, मोस्टली एशियन कंट्रीज़, ऐसे, ठीक है। लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट किस वे में है? आप लो कॉस्ट हर चीज़ में ले सकते हो, लाइक फैसिलिटीज़ में ले सकते हो, ठीक है, और आप हाउसिंग में ले सकते हो, फूडिंग में ले सकते हो, ट्रांसपोर्ट में ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो। लो कॉस्ट है इंडिया, वहाँ से इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज सस्ता है। कईयों से महंगा भी होगा, ऐसा नहीं है कि कई देश ऐसे, इंडिया सबसे ही सस्ता है, कईयों से महंगा होगा, बट मोस्टली जो लोग यहाँ पे आते हैं, देखो हमारे यहाँ अगर वो लोग आएंगे जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी से भी नीचे हैं तो बहुत कम इफेक्ट कर पाएंगे हमारी इकोनॉमी को, बहुत कम डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो वो जॉब क्रिएट बहुत कम कर पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए अदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर कर रहा हूँ मैं जिनकी इकोनॉमी इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। सो देन अनदर वन इज़ रिच कल्चर हेरिटेज। इंडिया को तो नेचर में ही इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में स्पीच में बताया था थोड़ा बहुत, कि हम इसमें मोटी मोटी चीज़ें क्या ले सकते हैं। देखो मोटी मोटी चीज़ें, हम जितने भी रिलीजन टेम्पल्स हैं, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहा हूँ, जितने भी रिलीजियस टेम्पल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या हैंडीक्राफ्ट्स है यार, क्या हैंडीक्राफ्ट मीन्स मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि यार ये कैसे बनाया होगा। आप ताजमहल ले लो, आप लाल किला ले लो, आप घूमने की बात हो तो कुल्लू मनाली हो गई। इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, ठीक है। साउथ में जाओगे तो आप इतने अच्छे अच्छे टेम्पल्स, इतने अच्छी हैंडीक्राफ्ट्स को इंट्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। सो ये क्या हो गया? रिच कल्चर हेरिटेज, ठीक है।
और इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, ठीक है। देन पर्सनलाइज सर्विस, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, जैसे किसी भी कोई भी अगर कोई आता है, ठीक है, सो उसको ऐसा नहीं होता कि यार लाइक यहाँ पे ऐसे वाला नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो, या फिर किसी को पार्शलिटी करके फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। यहाँ पे सबके लिए नॉर्मल है, ठीक है। पर्सनलाइज सर्विस होती है, जो एज ही वॉन्ट एज ही कैन अफोर्ड ही विल गेट, राइट। सो सेकेंड अनदर वन इज लेस वेटिंग टाइम। इंडिया में क्या होता है, देखो अब बाहर से कोई आ रहा है, सो ऑब्वियसली बात है, जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो, कोई बाहर से आ रहा है, सो कोई ड्राइवर है, ठीक है। अब कोई ड्राइवर, जैसे इंडियन कोई ड्राइवर और कोई यूएस से आ रहा है, तो इंडियन ड्राइवर यूएस से उसको लेने जाए, यूएस से उसका वेट करेगा एयरपोर्ट पे, तो उसके आने से पहले ही वहाँ वेट करेगा, ठीक है, उसको ना यहाँ वेट करना पड़ेगा। फिर हमारे इंडिया में जैसे आप बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई है, हम आगे बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत भी हम बहुत सारी चीज़ें, इवन हम खुद चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोग आए, हम उनको अच्छे से फैसिलिटेट करें। सो ये चीज़ लेस वेटिंग टाइम, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। देखो यहाँ पे होता क्या है, हमारे इंडिया में सारी चीज़ें लो कॉस्ट होती हैं, रिच कल्चर हेरिटेज हो रहा है, पर्सनलाइज सर्विस हो रही है, लेस पेंटिंग हो रही है। फिर इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। क्वालिटी यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड क्लास, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया वाई इंडिया, इंडिया कैसे इंपॉर्टेंट है। सो आपके पास 5 पॉइंट है, लो कॉस्ट, रिच कल्चर हेरिटेज, पर्सनलाइज सर्विस एंड लेस वेटिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं कि कौन होते हैं ट्रैवलर्स, कितने टाइप के होते हैं इंडिया में, कौन आता है ट्रैवलिंग करने, कौन आता है बेसिकली, ठीक है। सो इसमें से कुछ आपको इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं है, सो आपको सबको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे एक बार रीडिंग सबकी कर लो। देखो इंसेंटिव टूरिस्ट वो होता है जैसे आप किसी के द्वारा भेजे गए हो, ठीक है, आपके बॉस ने आपके लिए ऑर्गेनाइज करी हो, ठीक है। इको टूरिस्ट वो होते हैं जो लाइक नेचर के लिए आते हो, ठीक है, ठीक है। रिलीजियस टूरिस्ट आपको पता है, टेम्पल्स हो गए या रिलीजियस, किसी भी रिलीजियस प्लेस को विजिट करने आते हो, ठीक है। स्पोर्ट एंड रिक्रिएशन टूरिस्ट आपको पता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको सब आप वर्ड से समझ सकते हो, ठीक है। और देन अनदर वन इज़ बैक पैकिंग और यूथ टूरिस्ट, मीन्स जैसे कोई भी यूथ है, उसका मन किया, उसने बैक पैक किया और वो आ गया, ठीक है। स्पेशल इंटरेस्ट टूरिस्ट, जैसे कोई स्पेशली इंटरेस्ट के लिए आता है, मीन्स जैसे किसी को कहीं की वाइन पसंद है, किसी को कहीं का फूड टेस्ट पसंद है, वो वाला, ठीक है। फिर हेल्थ और मेडिकल टूरिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में। मेडिकल टूरिस्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, मेडिकल कैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बिजनेस टूरिस्ट, कई लोग बिजनेस की वजह से टूरिस्ट पे आते हैं, कोई साइट देखने आता है, कोई अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई लोकेशन देखने आता है, ठीक है। देन एजुकेशनल टूरिस्ट, क्या होता है, एजुकेशनल टूरिस्ट, ठीक है, कोई पढ़ने के लिए आता है और उसके साथ साथ वो टूरिस्ट करता है, मतलब होता है जैसे हमारे इंडिया में भी होता है ब्रॉड स्टडीज़, ठीक है। सो एडवेंचर टूरिस्ट, जैसे किसी को रिवर राफ्टिंग करनी हो, पैराग्लाइडिंग करनी हो, जितने भी एडवेंचर्स इवेंट्स हैं वो सारे करने हो, उसको क्या बोलते हैं, एडवेंचर टूरिस्ट। देन अनदर वन इज कल्चरल टूरिस्ट। व्हाट, कल्चरल टूरिस्ट जैसे बेसिकली किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए हो या फिर ऐसे कल्चरल टूरिस्ट, ठीक है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। सो अब आपको आइडिया हो गया होगा टूरिस्ट कितने टाइप के होते हैं, टूरिस्ट कौन होते हैं, टूरिस्ट कैसे कैसे होते हैं। सो ये आपका एक ओवरऑल आइडिया सा बन रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप टूरिज्म में घुसते जा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं टूरिस्ट आ गए भाई, हमने बात कर लिया इंडिया को क्यों चूज़ करें, हमने ये बात कर लिया कौन कौन आ रहा है। अब हम बात करते हैं हमें फ़ायदा क्या है इसका, क्या फ़ायदा है हम इंडिया में कोई टूरिस्ट, नॉट इन इंडिया ऑल्सो। वैसे मैं बात टूरिज्म इन इंडिया कर रहा हूँ, बट वैसे मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि टूरिस्ट कहीं भी जाए तो फ़ायदा तो होता ही है। सो बात करते हैं उसके एडवांटेजेस के बारे में। सो एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अभी मैं आपको आगे वीडियो में कुछ डेटा शेयर करूँगा, आप खुद देख के हैरान हो जाओगे, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सिग्निफिकेंट स्कोप फॉर टूरिस्ट एक्सपेंशन। देखो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप करती है, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अनदर वन इज़ 10th लार्जेस्ट बिजनेस ट्रेवल मार्केट ग्लोबली। मैंने आपको बताया था ना अभी, 5 डिपार्टमेंट, इवन 5 डिपार्टमेंट्स, तो आप उसमें देख लो 5 डिपार्टमेंट में कितने सारे लोगों को जॉब मिल रही है,
ट्रांसपोर्टिंग में कितने सारे लोग हैं, कितने लाख लोग हैं, ठीक है। फिर उसमें हाउसिंग में, होटल्स में कितने लाख लोग हैं, फिर फूड सर्विस, मतलब आपको एक ओवरऑल आइडिया मैंने दे दिया है पहले से। अब जो की पॉइंट्स है ना, आप उसको पकड़ के बस समझते चलो कि अब हो क्या रहा है। देखो, 10th लार्जेस्ट बिजनेस ट्रेवल मार्केट ग्लोबली, ठीक है। आगे बात करते हैं, रैपिड डिजिटलाइजेशन ऑफ द ट्रेवल सेक्टर। रैपिड डिजिटलाइजेशन, मैं यहाँ पे एक चीज़ दी बताना चाहूँगा। देखो, डिजिटलाइजेशन क्यों होता है, बेसिकली टू मेक थिंग्स ईजी, टू मेक थिंग्स लाइक ईजिली एक्सेस, राइट। सो जैसे इंडिया ने अभी कुछ टाइम पहले क्या किया था, ई वीज़ाज अलाउड करे थे, ई वीज़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वाला। सो ई वीज़ाज क्यों करे थे, ताकि लोगों को ईजिली वीज़ा मिल सके, ईजिली एक्सेस कर सके वो वीज़ा पे। सो ये डिजिटलाइजेशन का मतलब यही है, ठीक है। सो आगे बात करते हैं, हाई डोमेस्टिक स्पेंडिंग, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ इन डोमेस्टिक। देखो, बात क्या होती है, जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कोई टूरिस्ट आएगा, इंडिया में कोई टूरिस्ट आया, सो क्या गवर्नमेंट को स्टेप नहीं लेगी? लेगी। गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी? जो यहाँ के मोनूमेंट्स होंगे, जो यहाँ के टेम्पल्स होंगे, जो यहाँ की साइट होगी जिसको वो देखने आ रहे हैं, उसको मेंटेन करके रखेंगे। ऑब्वियस है, वहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे। एक छोटी सी चीज़ लेके चलो यार, हमारे घर पे रिश्तेदार आते हैं, तो हम रिश्तेदार आने से पहले हम क्या क्या कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, सोफ़े को ठीक से संभाल के, कोई गंदगी ना दिखे, उनके लिए फूड तैयार कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कैसे कोई चीज़ कैसे पकड़ानी है, ठीक है, वो सब कैसे बात, ऑब्वियसली प्री प्लानिंग, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। कोई फॉरेनर से आएगा या कोई, हम चाह रहे हैं कि ये, और इवन हम क्यों नहीं चाहेंगे, जब कोई आएगा हमारे में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे उसको अच्छी फैसिलिटी देना। सो बस यही है, डोमेस्टिक चीज़ों में सुधार आता है इस चीज़ से, ठीक है। देन आगे बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या होती है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक उड़ान। देखो, उड़ान क्या है वो आगे आपको बताऊंगा। उड़ान एक स्कीम है, वैसे आप अभी से याद कर लो, पता नहीं आगे मैंने डाली नहीं, मेरे को याद भी नहीं है। उड़ान, देखो, उड़ान एक स्कीम है जो टूरिज्म में डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको डिस्कस करा इसमें, डोमेस्टिक वाले में। सो ये सेम है कि यार चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे, तभी तो तभी वो चीज़ें लोग देखने आएंगे। अब जैसे ताजमहल, अभी थोड़े टाइम पहले था कि जो आगरा में ताजमहल है वो थोड़ा येलोइश हो रहा है। येलोइश हो रहा है क्यों? ड्यू टू फैक्ट्रीज, ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है। सो क्या तुम्हें क्या लगता है, उन्होंने कुछ करा नहीं होगा उस पीलेपन को दूर करने के लिए? या उन्होंने कुछ जैसे कोई चीज़ टूट जाती है उसको रिपेयर नहीं करते होंगे? रिपेयर करते हैं, ठीक है, करते हैं, रिपेयर करते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ताजमहल का ही कोई पार्ट टूट गया था, ठीक है, एंट्री गेट का पार्ट। सो तुम्हें पता है उसका, अब हम तो ये सोचेंगे कि कोई नया एंट्री पार्ट बनवाया होगा उन्होंने और वो दे दिया होगा। नहीं, हुआ क्या, जो वो पहले डिज़ाइन जो थी, ठीक है, जो पहले डिज़ाइन थी, जो पहले क्राफ्ट यूज़ हुई थी, उसी क्राफ्ट, ऐसे क्राफ्ट किसको आती है, ऐसे बंदे को ढूंढा गया स्पेशली। एक कम्युनिटी होती है पर्टिकुलर जिनको ये चीज़ें आती हैं, जिन्होंने ये चीज़ें करी हैं। सो हो सकता है जिसने अब वो जो पार्ट बनाया उसके एंसेस्टर्स ने ही उसमें काम किया हो ताजमहल को बनाने में। सो उसने स्पेशली उस बंदे को हायर किया, एक कम्युनिटी थी पूरी, कम से कम ये 50-60 लोग थे, इनको बुलाया और उस पार्ट को रिकवर करवाया। अब तुम ये देखो, इतना मैटर क्यों कर रहा है, वो किस में आता है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में आता है। कोई हम मेंटेन करके नहीं रखेंगे चीज़ों को, तो हमारे यहाँ पे आएगा कोई क्यों, ठीक है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज इंडिया राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम एंड मिडिल क्लास। देखो, अब मैं बेसिकली आपको हर चीज़ बता ही चुका हूँ, क्योंकि मैंने जो माइंड मैपिंग में आपको बताया है ना, वो बेसिकली हर चीज़ को कवर कर रहा है, ठीक है। सो अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। सो मिडिल क्लास लोगों की लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ट्रांसपोर्ट, फूड, सारे हाउसिंग्स, बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, what is it, considering the rich cultural and historical heritage, nothing important। चलो, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। एडवांटेज फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एडवांटेज हमने डिस्कस कर लिए। सो आगे बढ़ते हैं, हमने आगे क्या पढ़ना है। दिस इज़ द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट टाइप्स ऑफ टूरिज़्म। सो एडवेंचर टूरिज़्म, देखो मैंने आपको बताया था, राफ्टिंग, क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब, ठीक है। मेडिकल टूरिज़्म, पढ़ाई, ठीक है, किसी को आना है यहाँ पे, ठीक करवाना है, कोई हेल्थ इशू है,
वो यहाँ क्यों आएगा? सबसे पहली चीज़, आप बोलोगे कि बाकी जैसे फॉरेनर्स में तो हमसे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे इटली में, इन सब में तो, यूएस में, इन सब से तो हम से बहुत अच्छी है, वो यहाँ पे क्यों आएंगे? देखो, अगर किसी को, अगर इवन आपको भी कोई चीज़ एक जगह सस्ती मिल रही है और एक जगह महंगी मिल रही है, तो ऑब्वियसली आप जहाँ सस्ती मिलेगी वहीं जाओगे। सो यहाँ पे भी यही है, लो कॉस्ट, मैंने अभी आपको बताया, तो लो कॉस्ट यहाँ पे जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हमारे इंडियन डॉक्टर्स हमारे इंडियन डॉक्टर्स ने सर्जरी में एज ए सर्जन बहुत नाम कमाया है। इवन वहाँ पे भी हमारे इंडियन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। सो वो इंडिया आते हैं लो कॉस्ट में, इन कंपैरिजन टू यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, यूक्रेन, मोल्डोवा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बहुत सारी कंट्रीज़, एशिया की सारी कंट्रीज़। सो उनसे कंपैरिजन हमारे इंडिया में लो कॉस्ट पड़ता है। सो मेडिकल टूरिज्म समझ में आ गया। कल्चरल टूरिज्म मैंने आपको बता दिया, पर्टिकुलर कम्युनिटी को समझना हो या घूमना हो, ठीक है। इको टूरिज्म मैंने आपको बताया, नेचर से रिलेटेड। स्पोर्ट टूरिज्म मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं हम गेमिंग टूरिज्म की, ठीक है, गेमिंग टूरिज्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है बेसिकली, देखो मैं अपनी वीडियो का टॉपिक अभी जो है, अभी जैसे मैं टैगलाइन जो टाइटल डालने वाला हूँ, मैं टाइटल कोविड-19 में ज़रूर लिखूँगा। उसमें क्यों लिखूँगा? क्योंकि यार टूरिज़्म इस टाइम हमारा एकदम, मतलब नॉट इवन हमारा, सबका ख़त्म हो रखा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है टूरिज़्म पे। सो देखो, मैं इसलिए जानबूझ के मैं डेटा कलेक्ट करा है। देखो टूरिज़्म क्या क्या, देखो क्या तो वो था टूरिज़्म, मतलब ये है एक जीडीपी, कि टूरिज़्म से जीडीपी पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ये जीडीपी रेट है। सो क्या तो जीडीपी का वो था, और क्या रियल में अब है। सो देखो, सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की, बात करते हैं। 2.3% इंक्रीजमेंट बता रहे थे, अब कितनी आ गई है? इवन नेगेटिव में चली गई है, 0.4, ठीक है। देन बात करते हैं यूके की, 1.4 बता रहे थे, माइनस में चली गई है। फिर बात करते हैं फ्रांस की, 1.3 बता रहे थे, नेगेटिव चली गई है। फिर बात करते हैं इटली की, 0.2% बता रहे थे, -1.9% चली गई है, ठीक है। फिर बात करते हैं जर्मनी की, 0.2% इंक्रीजमेंट बता रहे थे, अब -1.9 चली गई है। बात करते हैं किसकी? इंडिया की, 5.3 बता रहे थे, 3.6%। सिर्फ इंडिया को थोड़ा ग्रोथ बताया है। क्यों? देखो, इंडिया में बेसिकली हुआ क्या है, कोविड-19 में इंडिया ने बहुत अच्छा थोड़ा परफॉर्मेंस करा है, ठीक है। मानो ना मानो, एज ए पॉपुलेशन, जितना एज ए पॉपुलेटेड सिटी है, कंट्री है इंडिया, उसके हिसाब से कोविड-19 कंट्रोल में है इंडिया के भी थोड़ा, ठीक है। सो इस पे थोड़ा मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इसकी माइनस में क्यों नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे ये भी हो जाएगी माइनस में, मेरे को जहाँ तक लगता है। बट मैं चाहता हूँ ना हो ऐसा, क्योंकि इवन वी आर इंडियंस एंड वी डोंट वांट एनीथिंग लूज टू इंडिया, राइट। सो नेक्स्ट वन इज़ चाइना की 6.1 थी, 0.2 आ गई, और 0.8 थी किसकी? जापान की, और वो कितनी हो गई? -2.5। सो कोविड-19 विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इन 2020, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट डेटा इज़ फॉरेन टूरिस्ट अराइविंग इन इंडिया, मिलियंस में है ये डाटा। सो पुराना डाटा है, बाकी ये टारगेट था, रिपोर्ट थी। अब कोविड-19 का किसी को नहीं पता था, अब कोविड-19 आ चुका है, किसी को नहीं पता डाटा क्या होगा, कितने टूरिस्ट विजिट करेंगे, कितने नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भी नहीं करेंगे। सो ये तब की थी, तो मेरा काम था इसको डिस्कस करना, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं टूरिज़्म पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं। 2005 में देखो 3.9, 2006 में 4.4, 7 में 5.1 इंक्रीजमेंट। देखो आप सब इम्पोर्टेंट ये देखो, और इन्होंने कहा था 2025 तक हम इसको 15.3 तक ले जाएंगे। वाओ, व्हाट आर लाइक, दे हैव ऑलरेडी सेटेड द टारगेट, बट नाउ व्हाट हैपन? कोविड-19 ख़त्म कर दिया सब इसने, मोस्टली हर चीज़ ख़त्म कर दी, बहुत 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 ख़त्म, बहुत मीन्स बहुत यार, बहुत फ़र्क पड़ा इससे। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं, हमने टूरिज़्म पढ़ लिया, टूरिज़्म में क्या आता है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, हमने वो सब पढ़ा, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। अब थोड़ी सी बात करते हैं टूरिज़्म को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, इवन क्या करना चाहिए,
कुछ वे फॉरवर्ड हम कह सकते हैं, these are the some way forwards which we can take steps. These are the precautions to improve tourism in India, right? So let's discuss the steps. Like first one is improvement, strengthening and multilingual support. Obviously यार लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है. इवन जब भी इवन आई हैव हियर लोड्स ऑफ फॉरनर्स फीडबैक ऑन इंडियाज टू ट्रेवल. They have all they don't like they didn't they have no problem with the Indian guys. They don't have any problem in the Indian trains. They don't have any problem with the food. They don't have any problem with the smell. They just have problem with the language. They have feel the language barrier. हमारे इंडिया में जो देखो, don't I'm not talking about the generation like right now the generation. Even they said that the people who are more than 25 or 30 or more than 30, even there are only like 25% who can speak English, right? So वो बहुत कम है, ज़रूरी है उसको बढ़ाना. So पढ़ो यार, इंग्लिश भी सीखो, और भी सीखो, जर्मन भी सीखो, स्पेनिश भी सीखो, बहुत इवन लैंग्वेज में बहुत स्कोप है. ठीक है. सो बात कर ली मैंने लैंग्वेज की. इम्प्रूवमेंट करो, स्ट्रेंथनिंग करो, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट. ठीक है. उनको चैट सपोर्ट मिल चाहिए. हम कहीं भी जाने से पहले देखते हैं ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता. अगर ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है तो हमारी लैंग्वेज में है कि नहीं है. ठीक है. हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये चीज़ें. ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये. सेकेंड वन में इम्प्रूवमेंट ऑफ टूरिज़्म इंफॉर्मेशन लोकेशंस फॉर फॉरेनर्स. टूरिज़्म इंफॉर्मेशंस क्या है? मीन्स हम फॉरेनर्स के लिए क्या दिखाना चाहते हैं. फॉरेनर्स को दिखाने के लिए व्हाट वी हैव, लाइक व्हाट द थिंग्स विच हैव दैट नो वन अदर कंट्री कैरीज दिस, राइट. क्या ताजमहल किसी और कंट्री में है? नहीं है. लेकिन उसको दिखाएंगे कब? उसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होगा, उसकी प्रॉपर लोकेशन होगी, उसकी प्रॉपर हर चीज़ हम प्रॉपर टूरिस्ट तक पहुंचा सकें. ठीक है. आ गया होगा समझ में. नेक्स्ट वन, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट. बात देखो, सिर्फ बात इतनी नहीं होनी चाहिए कि किसी भी टूरिस्ट से, देखो यहाँ मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि बाहर से कोई आ रहा है, मैं इवन बात कर रहा हूँ यहाँ से कोई बाहर जा रहा है. सो ये टूरिज्म है. ठीक है. दोनों के लिए है. डोंट थिंक कि सिर्फ बाहर से कोई आ रहा है तो हमें सिर्फ फॉलो करनी है. जब आप कहीं जा रहे हो तो आपके लिए भी दूसरी कंट्री में सारी चीज़ें होनी चाहिए. दूसरी कंट्री को हिंदी आने वाले लोग होने चाहिए उनके पास भी थोड़े. अगर आपको हिंदी नहीं आती तो उनको हिंदी आने वाले होने चाहिए. वैसे मोस्टली जहाँ अगर रूल है कि आपको जब इंग्लिश नहीं आती, आइल्स होता है, क्लियर करना होता है, तो आप फॉरेनर्स में नहीं, आपका वीज़ा नहीं लग पाता. सो ये सी चीज़. ठीक है. सो कम्युनिकेशंस को कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. ठीक है. सपोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड डिज़ास्टर्स. ये व्हाट अ पॉइंट. कोविड-19 के टाइम पे ये पॉइंट डिस्कस करना तो आपको मीन्स ऐसा होगा कि आपको सच में समझ में आ जाना चाहिए कैसे इंडिया ने फॉरेनर्स को एयरपोर्ट से निकाला है. इवन कैसे इंडियंस को फॉरेनर्स से लेके आ रहे हैं. ठीक है. कई मिशन चलाए जा रहे हैं, कईयों को नेवी शिप्स लेके आ रही हैं. सो ऐसे. ठीक है. सपोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड डिज़ास्टर्स. ठीक है. इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज मेजर्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट फंक्शंस एंड मिटिगेशंस ऑफ कंजेशन. मेजर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट फंक्शंस. ठीक है. देखो एयरपोर्ट फंक्शंस फैसिलिटीज़ को सुधारना चाहिए. ये फिजिकल मेजर्स में आता है. सॉरी, हम पहले नॉन फिजिकल में बात कर लेते हैं. ये फिजिकल में आ जाता है. नॉन फिजिकल में आ जाते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे. नॉन फिजिकल इज रोड कंजेशन मिटिगेशन, ट्रैफिक जैम और काउंटर मेजर्स. देखो ट्रैफिक जैम्स ये तो नॉट फॉर द फॉरेनर्स ओनली, हमारे इंडियंस के लिए भी करना चाहिए. लोग इसीलिए तो बोलते हैं यूज़ साइकिलिंग. Mostly people, those who are going nearby the house, they don't have to use they don't need to use their cars, bikes. They just need to use their bicycles, right? So traffic कम होगा और रोडों पे ट्रैफिक कम होगा तो एक्सीडेंट कम होंगे, किसी को लेट नहीं होगा, कोई हरी में नहीं होगा. सो इम्प्रूवमेंट करो किस चीज़ को? रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ को. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कन्विंस. देखो आपने खुद देखा होगा, आपने खुद फील किया होगा, इवन आपको खुद पता होगा यार कि जब कोई फॉरेनर किसी ऑटो वाले से किसी कहीं जाने के लिए बोलता है तो वो उससे 10 गुना पैसे बढ़ा के बोलता है. वाई? दिस इज़ नॉट द इंडियन कल्चर मैन. लाइक
of like if we are trying to loot it them, right? We are trying to loot it them. Why bro, why? If the foreigner, there is a foreigner, right? वो आया है, उसको यहाँ पे आया है, उसको अच्छी फैसिलिटी दो। इवन जो चीज़ें आप जितनी हो सके आप उसके लिए सस्ते में करो, ताकि वो वहाँ जाके they go back, they write about the India, they wrote about the things which have happened, and they like they most of them they publish their books there, right? So आप क्या चाहते हो, हमारे इंडिया की इमेज अच्छी बने या ना बने? सो यार देखो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी होते हैं, बट हाँ यार मैंने जहाँ तक देखा है मोस्टली लोग फॉरेनर्स को देख के ऐसे करते हैं जैसे यार कोई बैंक खुली तिजोरी हो गई है, उसको झूठ बोलते हैं ये वो। बट लीव इट, हमें डिस्कस करना है इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वेंस, ठीक है? जितना हो सके फॉरेनर्स के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ लानी चाहिए कन्वेंस में, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ सिक्योरिंग एंड इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट फॉर लोडिंग फैसिलिटीज़, लॉजिंग फैसिलिटीज़, उनके सामान की सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? कार्ड मीन्स कार्ड के जितने भी पेमेंट्स हैं वो हर वे में वो होनी चाहिए, ठीक है? अवेलेबल होनी चाहिए, कोई कैसे पेमेंट करना चाहे, कैश, ऑनलाइन, वो होना चाहिए, ठीक है? सो अब फिजिकली मेजर्स की बात कर लेते हैं। फिजिकली मेजर्स में क्या था? सबसे पहले एयरपोर्ट्स पे था। सेकंड वन, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉर रिसीविंग लार्ज क्रूज शिप्स पे इन्वायरमेंट, और नेक्स्ट वन इज़ रोड पे ही होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टूरिज़्म प्रमोशन दैट लेवरेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? ये बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? सो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको सारी बता दी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और एडवांटेजेस हैं, डिस्कस करते हैं क्या एडवांटेजेस है। सबसे टॉप पे है ये रोबस्ट डिमांड, क्या है डिस्कस करते हैं। सो इसके अंदर बात कर रहा है कि ये कह रहा है कि 2029 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टूरिज़्म सेक्टर है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा? 35 ट्रिलियन मीन्स 488 बिलियन डॉलर, ठीक है? बाय 2029 विद अ ग्रोथ ऑफ 6.7%, 6.7 की परसेंट से ग्रोथ करेगा, एंड अकाउंटिंग फॉर 9.2%, 6.2% से इंक्रीज कितना हो जाएगा? 9.2% ऑफ द टोटल इकोनॉमी। देखो यार कितनी बड़ी बात है। कह रहे हैं टूरिज़्म से 2029 तक जो हमारा टूरिज़्म है कितने तक पहुंच जाएगा? 35 ट्रिलियन। ब्रो इट्स ह्यूज, राइट? बहुत डेवलपमेंट है, ठीक है? टूरिज़्म से सिर्फ बहुत डेवलपमेंट है। और ये कह रहे हैं जैसे ग्रोथ रेट अभी कितनी है? ये है 6.7, तो 2029 में कितनी हो जाएगी? ये 9.2। और ये ग्रोथ रेट है किसकी? टोटल इकोनॉमी की, ठीक है? सो बात करते हैं आगे। सो ये आगे बात कर रहा है, देखो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स इन इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू रीच, देखो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो इंडिया में कितने तक हो जाएंगे आपको पता है? ये हो जाएंगे 30.5 मिलियन तक 2028 तक। और 2020 तक ये मेडिकल टूरिज़्म इंडस्ट्री है ना ऑफ इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू टच 9 बिलियन। मेडिकल इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट है मेडिकल इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया हैज़ अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ नेचर टूरिज्म प्रोडक्ट्स, क्रूसियस, एडवेंचर, मेडिकल, वेलनेस, स्पोर्ट्स, इको टूरिज़म, फिल्म, रूरल, रिलीजियस टूरिज़म। ये बेसिकली ये चीज़ें हैं अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया में जो चीज़ें मैंने बताया ना आपको, लो कॉस्ट में मिल जाती है, और ये सारी चीज़ें टूरिज़म, टाइप्स ऑफ टूरिज़म। सो अब आपको सब समझ में आ रहा होगा यार, मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरे को लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी लिखा आ रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। पॉलिसी सपोर्ट पे बात कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डेवलप 17 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स, ठीक है? 17 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या करा है, बाद में आगे सुनो। इनटू वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशंस, जो 7 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स हैं इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे? वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशंस में, एज पर यूनियन बजट किस में है ये बात? यूनियन बजट 2019 to 20। इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पॉइंट है लिख सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 17 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स हैं उनको क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन में। वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन मीन्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पे फेमस होगी, ठीक है? सो ये किस में है? 2019 to 20 के बजट में। नेक्स्ट वन इज कैंपेन सच एज स्वदेश दर्शन चला है,
कैंपेन्स देख लो यार, इनकी डिटेल्स आप खुद पढ़ लेना, 2-2 मिनट लगेंगे। बाकी एक जगह लानी थी वो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर दी है, ठीक है। स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन में क्या होगा, लोगों को जैसे अभी वेबिनार चल रहा है, भारत देखो वेबिनार, मीन्स वर्चुअली इंडिया को दिखाया जा रहा है, लोगों को टूर कराया जा रहा है वर्चुअली। कितने टाइप के टूर होते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए कि टूरिस्ट कितने वर्चुअली भी एक टूर, पता है आपको टूरिज्म एक वर्चुअल टूरिस्ट भी वर्चुअल टूरिज्म भी होता है कि आप बैठे हो कहीं और आप वर्चुअली किसी चीज़ को देख रहे हो और एंड यू आर फीलिंग दैट आई एम देयर। ओके, सो आगे बात करते हैं। स्वदेश दर्शन थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स वर लॉन्च्ड एंड हार्नेस द टूरिस्ट इंडस्ट्री पोटेंशियल। इम्प्रूव करने के लिए बात है, इंडिया ऑफर्स जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में तो आपको पता ही है यार, एक तरफ से हमारा तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ऊपर हिमालयाज, यू नो द ब्यूटी ऑफ इंडिया, राइट। आगे बात करते हैं। एन अट्रैक्टिव बीचेस, 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड 10 बायोग्राफिक जोन्स। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एंड 10 बायोग्राफिक जोन्स हैं, ठीक है। सो ये हमने बेसिकली बात करी है इंडिया के एडवांटेजेस को, जिनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, जो चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, जो है वो इसका खेल है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितने मेंबर है, 157 मेंबर है, ठीक है। क्या करती है, द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म। गॉट इट। टूरिज़्म को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, टूरिज़्म को एक्सेसिबल और टूरिज़्म को ईजिली बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए काम करती है। यूएन की है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में है, ठीक है। और हेड कौन इसके, तालिब रिफाई हैं। फाउंडेड वॉज इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 नवंबर 1974। देखो 1974 से चलता आ रहा है ये टूरिज़्म। मीन्स ये जो 5 ईयर प्लानिंग्स, 12th जो हमारा 5 ईयर प्लान था, जिसका नाम अब नीति आयोग कर दिया गया है, उसमें भी टूरिज़्म को लेके बहुत चीज़ें हुई थी, ठीक है। सो है कहाँ, यूरोप में है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसने ऑर्गेनाइज किया, कौन है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो बढ़ते हैं आगे। ये बात करी हमने वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन की। अब कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास, फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। ये है कि लोग 2017, ये 2017 है, ये 2018 है। 2017 में कितने लोग आए थे, 2017 में 18 में कितने लोग इंडिया में पहुंचे हैं, इंटरनेशनल अराइवल्स हैं। देखो 86 थे, 89 हो गए, 81 थे, 82 हो गए, 76 थे, 79 हो गए, 60 थे, 62 हो गए, 58 थे, 62 हो गए, 37 थे, 45 हो गए। मेक्सिको से 39 थे, 41 हो गए, 37 से 39 हो गए, 35 से 38 हो गए। बढ़ रहे हैं ना, इंक्रीजमेंट हो रही है, हम बढ़ते ही चले गए ये। सो वो मैंने आपको ग्राफ दिखाई दी ना अभी, वो ऐसे ऊपर ऊपर जा रही थी, ठीक है। और 2025 तक वो 15 पॉइंट कुछ तक ले जाने वाले बात कर रहे थे। सो ये हो जाता, इवन हो भी सकता है। कोविड-19 ने पर थोड़ा फ़र्क कर दिया इसमें। आगे बात करते हैं। और यार आप इसमें ये देख लो, ये फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स, ये इंडिया से मतलब इकोनॉमी में इंडिया से ऊपर ही हैं वैसे। सो ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, अच्छी मेडिकल क्वालिटी, अच्छे स्पोर्ट्स, अच्छी पैराग्लाइडिंग वगैरह, अच्छे एडवेंचर्स टूरिज़्म, मोस्टली अच्छी फैसिलिटीज़, लो कॉस्ट पे, सब समझ में आना चाहिए। अब आपको खुद कनेक्ट होने चाहिए। चाइना, इटली, टर्की, मैक्सिको, जर्मनी, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, सब आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अब बात करते हैं हम थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। सो अब फटाफट जितना माइंड मैपिंग के थ्रू समझाने वाला था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब तक आपको टूरिज़्म पूरा समझ में आ जाना चाहिए। फिर अब बात करते हैं मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया। इंडिया ने क्या पॉलिसी लिया। 1988 में इंडिया ने क्या किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टूरिज़्म इस्टेब्लिश की थी। सिर्फ फैक्ट्स है, क्यों की थी आपको पता है, टूरिज़्म को इम्प्रूवमेंट करने के लिए की थी। फैक्ट्स है, याद रखो क्या किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं 1991 में क्या किया था, टूरिज़्म एज ए सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के सोर्स बनाया था इसको। 1992 में नेशन एक्शन प्लान फॉर टूरिज़्म, ठीक है। 1999-2000 में विजिट इंडिया ईयर। 2020 में द कॉन्सेप्ट ऑफ हाईवे टूरिज़्म, एग्रीकल्चर टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म। ए कैंपेन टाइटल्ड एज इनक्रेडिबल इंडिया वॉज लॉन्च्ड। इनक्रेडिबल इंडिया, यार देखो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट, जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे चीज़ों का उतना ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ेगा।
ठीक है, बढ़ते आगे। 2019 अनदर कैंपेन टाइटल एज अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ये तो बहुत फेमस था, 2019 में ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये 2019 में नहीं, 2009 में था। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और चीज़ें, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया, दैट इज़ लाइक लॉन्च ऑफ टूरिस्ट ई वीज़ा। ई वीज़ा मैंने आपको ई वीज़ा का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। सिटीजन्स ऑफ 44 कंट्रीज़, 44 कंट्रीज़ के सिटीजन्स को ई वीज़ा, क्यों? जल्दी मिल सकता है, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ द डेस्टिनेशन थ्रू द इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन अक्रॉस द ग्लोब, जो भी डेस्टिनेशन थी उसका प्रमोशन किया गया। प्रमोशन अभी एडवर्टाइजमेंट में बताया। पार्टिसिपेशन इन मेजर इंटरनेशनल टूरिज्म एंड ट्रेवल फेयर्स एग्जीबिशन, जितनी भी लेवल पे जो इंपॉर्टेंट एग्जीबिशंस होते थे, जो टूरिज्म के लेवल पे ट्रेवल फेयर्स होते थे, जैसे बुक फेयर होता है तो किताबों से ऑथर्स वगैरह आते हैं, ऐसे ट्रेवल के भी फेयर्स होते हैं जहाँ पे इंडिया ने अपने प्रमोशंस किए और विजिट किया। द टूरिज्म मिनिस्ट्री हैज़ सेंक्शनड RS 131 lakh फॉर द डेवलपमेंट फॉर रूरल टूरिज्म साइट्स, जो रूरल टूरिज्म साइट्स होती हैं, ठीक है। रूरल से मीन्स क्या समझ में आ रहा है आपको? जो ऐसी जगह पे होती है जहाँ के लोग केयर कम कर पाते हैं, लोग जा कम पाते हैं, ठीक है। जैसे अब यार आप एक कंपेयर करके देखो खुद यार, कि मैं आपको बोलूँ कि जो इंडिया गेट है दिल्ली में, ठीक है, एक इंडिया गेट को ले लो और एक कोई रूरल में ले लो, जैसे लाइक मेरे को अभी कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा, सो उसकी कितनी केयर होती होगी यार। मैं बताता हूँ, हल्दी घाटी में एक वो है, बहुत फेमस फोर्ट है, या आमेर फोर्ट वगैरह। सो इन तुम्हें क्या लगता है जितनी इंडिया गेट पे केयर होती है, जितनी इंडिया गेट पे सिक्योरिटी होती है, उतनी वहाँ पे होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? फ़र्क पड़ता है। क्यों? रूरल और अर्बन का बहुत फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ पे यही है, इन्होंने 131 करोड़ लगाए थे किस पे? रूरल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन फ्यू इनिशिएटिव्स आर देयर, लाइक इन द ईयर 2002 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ए न्यू टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है। द पॉलिसी इज़ ऑफ 7S मंत्रा। 7S मंत्रा क्या था? देखो ये इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन कर सकते हो आप भी कहीं भी। द पॉलिसी ऑफ 7 मंत्रा क्या था? 7S क्या थे? स्वागत मीन्स वेलकम, सूचना मीन्स इंफॉर्मेशन, सुविधा मीन्स फैसिलिटेशन, सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी, सहयोग मीन्स कोऑपरेशन, एंड संरचना मीन्स क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड सफाई मीन्स क्लीननेस। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। 7S किसको पता था? 7S अभी तक नहीं पता था, आप पता चल गया ना, चलो खुश हो जाओ। आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन है कोविड-19 पे ख़त्म। द क्राइसिस इन टूरिज्म ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द कोविड-19 कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर डिस्कशन, ठीक है, इन द इकोनॉमी। इम्पॉर्टेंट है ये, आ भी सकता है कहीं भी। सो आप जैसे जैसे मैंने आपको जो जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व करे हैं, फूड डिपार्टमेंट, टूरिज्म वो सारे डिपार्टमेंट्स को, उन सबको मेमोराइज करके एक प्यारी सी एक चीज़ लिखने की कोशिश करना कि कोविड-19 की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सो देखो यार, जो माइंड मैपिंग, जो पिक्चर्स की बात थी, वो सारा अब ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब फाइनली किस पे आते हैं? थ्योरी पे। थ्योरी में क्या पढ़ना है हमें? टूरिज़्म क्या है? थ्योरी में अब सुनना समझना हो गया, अब थोड़ा लिखना सीख लो। देखो लेटेस्ट स्टेट्स क्या है? इंडिया टूरिज्म इज़ रैंक्ड 17th वर्ल्ड GDP। टूरिज्म काउंसिल्स रिपोर्ट निकाली थी, ठीक है। रिपोर्ट कब निकाली थी? ये मे बी 2017 की है, ये बहुत पुरानी है, डाटा बहुत पुराना है ये, ठीक है। इंडिया टूरिज्म रैंक 7th किस में? वर्ल्ड GDP में अपना कंट्रीब्यूट कितना कर रही है ये? इतना कर रही है कि 7th रैंक पे आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पहले ही पढ़ चुके हैं, लोकेटेड इन इंडिया, इंक्लूड 30 कल्चरल साइट्स। इसमें से 30 तो कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं, और एक क्या है? मिक्स क्राइटेरिया है। वाओ, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, सो एज ऑफ 2019, देखो इम्पोर्टेंट है, डाटा है, इम्पोर्टेंट है। एज ऑफ 2019 4.2 करोड़ जॉब्स वर क्रिएटेड। देखो अब देख लो, अब जो इतने भी चीज़ें थी अब वो सारी थियोरेटिकली देख लो। 2019 में 4.2 करोड़ जॉब्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिएट करी थी किसने? टूरिज्म सेक्टर ने।
इंडिया विच वॉज 8.1% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। जितने भी एम्प्लॉयमेंट है ना कंट्री में, जितने भी, उसका 8.1% किसने करा था? टूरिज्म ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फ्रॉम टूरिज्म, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग? बाहर से आया, कोई लोग बाहर से आए, डॉलर दिए, रुपीज़ ली, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, हमारे पास डॉलर का स्टॉक हो गया। हम गए बाहर, हमारा रुपीज़ तो खैर यूएस में जैसे जाओगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी इतनी, बट हाँ जैसे कहीं और जाओगे, ठीक है, भूटान वगैरह में, उनके पास इंडियन रुपी का कलेक्शन हो गया, वो बांग्लादेशी टका देंगे आपको। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। FFEs मीन्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल वर RS। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, समझने की कोशिश करो बस, ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज मनी थी वो 2019 में कितनी थी? इतनी थी 17,061, ठीक है, करोड़, और करोड़ थी ये। और इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? 2018 से। 2018 में कितनी थी ये सिर्फ 15,620 करोड़, 15,620 करोड़, 15,620 करोड़। बढ़ गया ना, 15 से 17 हो गया यार, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है? द ग्रोथ रेट FEs इन रुपीज़ टर्म्स इन अप्रैल 2000 ओवर अप्रैल वॉज 9.2%। 9.2% से बढ़ी है यार ये, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्या बात करी? इम्पोर्टेंट स्टेट्स की, जो इम्पोर्टेंट डाटा था। अब बात कर लेते हैं हमारे इंडिया में टूरिज़्म की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंस तो खैर आपको समझ में आ ही रही होगी अब, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज़्म इन इंडिया जनरेट्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या करता है? जनरेट्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पता है आपको, इनकम जनरेट करता है और एम्प्लॉयमेंट। अब डाटा देखो, अब बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपको बहुत चीज़ें सारी सब पढ़ के ही समझ में आ जाएगी अब एक बार में। 2017 टूरिज्म इंडस्ट्री अकाउंटेड फॉर 8% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज हैज़ बीन विटनेस्ड। कितना? 2007 में 8% बढ़ गया था, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। किसकी वजह से? टूरिज्म की वजह से। नेक्स्ट वन इज इन द सेल ऑफ हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स एट्सेट्रा। इन सब के हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह मैंने बताया ना, गिफ्ट्स की शॉप, ठीक है, वो सब रही। इन सब में भी वो हुआ था इंप्रूवमेंट। सर्विस सेक्टर में क्या हुआ? इट गिव्स ए पुश टू सर्विस सेक्टर, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर सच एज एयरलाइंस। किस में? कौन से? मैंने बताया ना, ट्रांसपोर्ट, होटल, सब वही आएगा बस। अब थ्योरेटिकली देख लो इसको। एयरलाइंस, होटल सर्फेस ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री टूरिस्ट। अब फॉरेन ट्रेवलर्स हेल्प इंडिया इन गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन ट्रेवलर्स हेल्प इंडिया इन गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। टूरिज्म हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज। देखो टूरिज्म से ये सारी चीज़ें प्रिजर्व कैसे होंगी? मैंने आपको बताया था ना, वो मेहमान वाली बात। कोई हमारे घर में आता है तो उससे पहले हम चीज़ों को क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। वही गवर्नमेंट सेव करेगी। सो हमारे इसको क्या होता है, क्या मिलता है? प्रिजर्वेशन, बचे रहते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। और ब्रिंगिंग फोकस टू इम्पोर्टेंस ऑफ साइट्स। ऑब्वियसली बात है यार, अगर कोई नहीं आएगा तो उन साइट्स पे कोई इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, कोई उनको नोटिस ही नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिन्यूअल ऑफ कल्चरल प्राइड, टूरिस्ट स्पॉट बीइंग अप्रिशिएटेड ग्लोबल इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ प्राइड अमंग इंडियंस रेजिडेंट गेट इन फ्रंट फोर्स। इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बस क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, समझ लो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट nowadays it just ensure that the travelers don't face any problem। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या आता है कि उनका मेन टारगेट होता है कि कोई भी ट्रेवलर हो तो कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करे। मल्टीपल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर आर गेटिंग डेवलप्ड इट एट सेवरल टूरिस्ट प्लेसेस। यूके प्लान टू स्टार्ट मोबाइल का बना। देखो ये मोबाइल ऐप वाले में एक चीज़ बताना भूल गया, बहुत सारे मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, टू इम्प्रूव, टू बेटर द टूरिज्म, ठीक है, टू मेक द बेटर टूरिज्म, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग इंडिया ऑन ग्लोबल मैप ऑफ टूरिज्म, ठीक है। ग्लोबल मैप पे इंडिया को ग्लोबल मैप पे लाने में हेल्प करता है। मीन्स फेमस तो होगी यार, कोई लोग आएगा, किसी को पसंद आएगी, कोई आएगा यहाँ पे, उसको पसंद आएगी, वो लिखेगा, फिर उसको और लोग पढ़ेंगे, समझ रहे हो। सो और लोग घूमने आएंगे। ग्लोबली क्या होगी? ग्लोबल मैप पे टूरिज्म को अर्निंग अप्रिशिएशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड इनिशिएटिव कल्चरल एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं।
टूरिज्म एज अ फॉर्म ऑफ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर होती है मेकिंग रिलेशंस विद अदर कंट्री, ठीक है। हेल्प्स इन प्रमोटिंग कल्चरल डिप्लोमेसी। कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करो। पीपल टू पीपल कनेक्ट हो पाते हैं ऑब्वियसली। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो एक बार यहाँ घूमने आते हैं और इतने सारे दोस्त बना के जाते हैं यार, ठीक है। और इवन आप इंडियंस को देख लो, इंडियन तो खुद चाहते हैं कि उनके फॉरेनर्स दोस्त हो, तो वो तो खुद बात करते हैं उनसे आगे जा जाके, ठीक है। सो और इवन फॉरेनर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो हमारे एज ए इंडियन, देखो यार काफ़ी कुछ फॉरेनर्स ही होते हैं जिनको इंडियंस को वो क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, बट बहुत कम होते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने ये सारी बातें कर ली, ठीक है, कोऑपरेशन की सब बात कर ली। अब क्या करते हैं, चैलेंजेस। यार प्रॉब्लम क्या आती है, मतलब टूरिज्म है अब और ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा और अच्छे से क्यों नहीं हो रहा, इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? तो प्रॉब्लम्स की बात कर लो। चैलेंजेस टू द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। Tourists in India still face many infrastructure related problems like inadequate roads, water, sewer, hotels and telecommunications। देखो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको, इम्पोर्टेंट है बस यार। देखो जो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई चीज़ कमी ना हो। इंडिया के बारे में हमने इतनी अच्छी चीज़ें कर ली, अब इंडिया में कोई कमी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। इंडिया से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जब भी हो तो है, ऐसे ही थोड़ी ना। यूएस वगैरह ये सारी चीज़ें, जर्मनी, ये लिस्बन, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, ठीक है। सो फिर टूरिस्ट इन इंडिया स्टिल फेस कौन कौन सी प्रॉब्लम करते हैं, जैसे रोड्स, इनएडुकेट, वाटर, सेवर, होटल, टेलीकम्युनिकेशन। समझ में आ रहा होगा पढ़ने पे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत कम करते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी मैंने बहुतों के फीडबैक देखे हैं, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत कम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेफ नहीं है, या सिक्योरिटी प्रॉब्लम, स्पेशली ऑफ द फॉरेनर टूरिस्ट, is a major hurdle to the tourism development. Attacks on foreign national raise questions about India's ability to welcome tourists from far away। जैसे बहुत पहले से यार ये अटैक्स वगैरह तो हो ही जाते हैं, अब कुछ तो हरामी होते ही हैं इंडिया में। फिर आगे बात करते हैं। Among the 130 countries surveyed in India was placed at the 114th position in terms of safety and security aspect in WEF index, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म इंडेक्स। सिक्योरिटी इंडेक्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बात पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज अनदर चैलेंज और टूरिज्म इंडस्ट्री। क्या है? लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर क्या? बहुत सारी स्किल्ड है जो हमारे इंडियंस में नहीं हो पाती। एक तो कम्युनिकेशन ही समझ लो यार, एब्सेंस ऑफ बेसिक एमिनिटाइटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, मतलब हम हर किसी के प्रेफरेंस को पूरा नहीं कर सकते ना। वेल मेंटेन टॉयलेट्स, फर्स्ट एड क्राइटेरिया एट टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। फिर सीजनलिटी इन टूरिज्म विद द बिजी सीजन बीइंग लिमिटेड इन टू 6 months फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च एंड हैवी रश इन नवंबर एंड दिसंबर। समझ रहे हो, मतलब सीजनली होता है ये सब टूरिज्म वगैरह। तो दिक्कत तो यार ऑब्वियसली एक बार में अगर बहुत सारे लोग आएंगे तो कोशिश करेंगे लोग कि कम लोगों को टाइम देके, कम फैसिलिटी देके हम मोस्टली पैसा अर्न कर सकें। इंडियंस पे नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कार्ड्स काफ़ी, मैंने अभी आपको माइंड मैप के थ्रू ही बताया था कि हर तरह के कार्ड एक्सेप्ट करने चाहिए, जबकि इंटरनेशनल कार्ड्स को नॉन एक्सेप्ट करा जा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। वैसे स्टेप्स हमने काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं, फिर और स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया गवर्नमेंट हैज़ टेकन फॉलोइंग स्टेप्स टू ओवरकम द चैलेंजेस। स्वदेश दर्शन स्कीम, देखो ये स्कीम्स है, अब खुद पढ़ना थोड़ा बहुत इनके बारे में, ठीक है क्या? अंडर इट द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रोवाइड सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या वो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर 13 आइडेंटिफाइड थीम बेस्ड सर्किट्स के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। 13 सर्किट्स वो 13 सर्किट्स कौन से हैं जिनके लिए वो पैसा प्रोवाइड करा रही है? तो वो 13 सर्किट है, देखो अपना देख लेना है कि नहीं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्किट, बुद्धिस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ में हम तो हैं, बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक है, हिमालय सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट एंड हेरिटेज सर्किट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन includes employment generation has been undertaken under the National Mission on Pilgrimage and Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Driver प्रसाद स्कीम। देखो ये बहुत बड़ी स्कीम है, अब बस इसको खुद जाके एक बार नेट से पढ़ लेना, 2 मिनट की पढ़ाई, 2 मिनट लगेंगे, आपको खुद समझ लोगे, ठीक है।
हम टूरिज़्म के बारे में पढ़ रहे हैं और अगर ये चीज़ ना पढ़े तो फिर तो हमने टूरिज़्म के बारे में पढ़ा ही नहीं। पर्यटन पर्व फॉर्म मीन्स वर्ल्ड टूरिज़्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, ठीक है। 2018 में इनकरेज टू इंडियंस विजिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू इंडिया। वैसे बेसिकली ये चीज़ याद रखना, 27 सितंबर। इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट टू प्रमोट एंड इंगेज द ट्रेवलर्स। वेबसाइट्स प्रमोट कर रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर क्रिएटिंग स्किल्ड मैन पावर वर्क एज टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं वे फॉरवर्ड, क्या क्या कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें थी, हमने क्या क्या करे हैं, अब हम क्या क्या कर सकते हैं। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ ऑल सॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल सोशल एंड डिजिटल इज़ अ नीड ऑफ आ। रिसेंटली अभी हमें क्या ज़रूरत है, हमें जितनी जल्दी हो सके हमें फास्टर डेवलपमेंट करना है। किस चीज़ का? फिजिकली सोशल एंड डिजिटल, जितनी भी चीज़ें जो नीड है। जैसे फिजिकली में मैंने आपको रोड वाला बताया था, सोशली में आप इंक्लूड कर सकते हो इनको लाइक कन्वेंशंस को, रोड ट्रांसपोर्ट को। और डिजिटल में आपको पता है कम्युनिकेशन, बायलैंग्वेज, टेक्स्ट पे हर लैंग्वेज में आपको सपोर्ट देना है। वे फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या कर सकते हो। अगेन सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट इज़ प्रायोरिटी, ठीक है। देखो सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट इज़ अ प्रायोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट इज़ अ प्रायोरिटी एंड ऑफिशियल गाइड सिस्टम कैन बी लॉन्च फॉर टूरिस्ट। ऑब्वियसली लॉन्च करना चाहिए यार, जब सेफ्टी उनको प्रॉब्लम हो रही है, जब बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे कह रही हैं तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए, कुछ अलग स्टेप लेना चाहिए। इंडियन रेजिडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू ट्रीट टूरिस्ट वेल सो दैट टूरिस्ट डोंट फेस एनी टाइप ऑफ फ्रॉड। और इंडियन जो हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। किस लिए मोटिवेट मीन्स? उनको ऐसी अच्छी चीज़, ऐसे लेक्चर्स देने चाहिए, प्यारे प्यारे लेक्चर्स, ताकि वो इंडियंस को और उनको फॉरनर्स को ठगे ना यार। क्या मिलेगा उनको ठग के? एक दो को मेरे पास लगा दो, मैं समझा दूंगा एक दो को अच्छे से, वो उसके बाद कभी नहीं ठगेंगे किसी को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म लाइक मेडिकल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म। ये सब तो मैंने बता दिया टूरिज्म टाइप के होते हैं। फिर इनका क्या है, प्रमोशन करना है, एटसेट्रा। सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सीजनलिटी ऑफ सीजन। और जितनी भी मीन्स इसमें बेसिकली वे फॉरवर्ड में हमने क्या बताया, जितनी भी जो हमने चैलेंजेस डिस्कस करे हैं उनको इम्प्रूवमेंट करना है, बस बेसिकली ये है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सो बेसिकली ये था, हमने ये डिस्कस करा पूरा टूरिज्म इन इंडिया। आई होप सो मैं आपको समझा पाया, आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इट वॉज जस्ट लिटिल बिट ट्राई, आई वॉज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड what is the tourism, what is the tourism key factors, and what we can do, how to improve tourism. So I have cleared each and everything to you, right? I have delivered everything as I can do the best myself, okay? So this is all from my side. So have a nice day. Thank you so much for watching my video.